Hello students and all the learners. Here we are again for the learning of Android programming language, and here we will go for the learning. So get ready for the learning of the Android. Hello students. We are here again about the learning of Android programming. So we can start about the Android programming. Let's start. So here is the PPTs about the Android programming, and we can learn about the Android programming, about how to work and why we can use the Android by this PPT. So we start this PPT now. Here first, here is the scheme of your syllabus, students. What is the scheme of your syllabus? Second, here is the introduction to Android, development of Android, Android activities, UI design and references. This is the basic introduction and the whole part of your syllabus of Android programming. Next is the course outcome. What is the course outcomes? Means what you will get after performing your practical or after learn about the Android programming. What you will get is called the course outcomes. Okay, so here is the course outcomes: CO1, CO2, CO3, CO4, CO5. Next, we will start about the Android with the contents. What is the contents? Basic contents, those we will learn about the Android. First is the introduction to Android. Second, Android history. Third, the versions of Android. Fourth, architecture of Android. Features of Android. Android for developers. Advantages and disadvantages of the Androids. So in the previous slide or in the previous lecture, I will told you about the basic about the Android programming. Android is basically an operating system which is useful for the touchscreen devices such as mobile, or you can see in the present here we can see the different type of mobile devices like Samsung, like Nokia, like Oppo. So these are the systems who can use the Android programming, है ना. ये सारे सिस्टम जो है वो एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं, है ना. नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द एंड्रॉइड. सो हियर इज द 4 पॉइंट. फर्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ द एंड्रॉइड. व्हाई वी यूज द एंड्रॉइड इज द बेसिक knowledge. It is the basic question in the student's mind that why we use the Android programming. So here is the basic introduction. Third one is the what are the features of the Android programming. So what are the features? Features means its quality. What about its speciality? It's called the features. What are the features of Android? Why this is the very special for the touchscreen operating system. And the last one is the application of Android. This one is the last basic point of the Android programming. So we continue. Here you can see the basic slide of the Android programming. You can see here is the heading. What is the Android programming? So I can explain. Android is not a name of mobile. Android, it is not a name of mobile or not an app. It is not a Android app. It means जो Android system है
वो ना ही एक ऐप होता है और ना ही ये एक मोबाइल का नाम होता है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि एंड्रॉयड मीन्स क्या, वॉट इज द एंड्रॉयड, इट इज द नेम ऑफ द मोबाइल और इट इज द ऐप? नो, इट इज नॉट द नेम ऑफ द मोबाइल एंड नॉट नाइदर द ऐप। ये ना ही मोबाइल का नाम होता है ना ही ऐप है। इट इज बेसिकली अ बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द गूगल। We can see it is developed by the Google. So here is the basic introduction. We can read Android is a mobile operating system. Android क्या होता है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब आप पूछेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी डिवाइस में वो सिस्टम होता है जो कि यूजर्स को उसकी बेसिक नीड के थ्रू इंटरेक्ट कराता है। इट मीन्स यदि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको कैसी कॉन्टैक्ट लिस्ट प्रोवाइड हो रही है, कैसी गैलरी आपको दिखाई दे रही है, कैसी फ़ोटोज़ आप खींचना चाहते हैं, बेसिकली ये सारी चीज़ें एंड्रॉयड या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो एंड्रॉयड इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और अब तो ये सिस्टम्स और डेस्कटॉप में भी यूज़ होता है। एंड्रॉयड इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि एंड्रॉयड इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। ओपन सोर्स मीन्स क्या? आपके मन में बेसिक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द ओपन सोर्स वर्ड? द ओपन सोर्स मीन्स इट इज नॉट द बाउंडेड, इट मीन्स इट हैज नो कॉपीराइट। आप एंड्रॉयड का यूज किसी भी सिस्टम से दुनिया के किसी भी कोने से कर सकते हैं। इसका आपको कोई कॉपीराइट इश्यू नहीं है, आप इसे किसी की परमिशन के बिना ही यूज कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट के थ्रू आप एंड्रॉयड को इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इसका सोर्स कोड आपको इसमें बेसिकली प्रोवाइडेड होता है। इसके अलावा इसका बेसिक कोड जो है वो आप अपने यूज के थ्रू या अपने यूज की नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड द ओपन सोर्स। इसका मतलब ये है कि ओपन सोर्स है मतलब सभी के लिए अवेलेबल है, अवेलेबल टू ऑल एंड हैज नो कॉपीराइट इश्यू, है ना। तो आप एंड्रॉइड को कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं। एंड्रॉइड को आप कैसे भी अपने सुविधा के अनुसार इसमें ऐप डेवलप कर सकते हैं, आपको कोई इश्यू नहीं है। सेकेंड, इट इज बेस्ड ऑन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ लाइनक्स कर्नल। इट मीन्स कि लाइनक्स कर्नल, मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि लाइनक्स कर्नल एक पार्ट है एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर में। इसे बेसिकली एंड्रॉयड का हार्ट बोला जाता है, बिकॉज विदाउट लाइनक्स कर्नल नो ऑपरेशन कैन बी डन इन द एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में कोई भी वर्किंग, कोई भी ऐप डेवलप करने के लिए आपको लाइनक्स कर्नल का यूज करना ही होगा। Android is a powerful operating system supporting a large number of applications, more than 7 lakh in smartphones. It means Android जो है वो एक powerful operating system है, powerful because it can support a large number of device operations. It can support large number of languages. You can see in the slide. We can use the more than 5,000 languages over द स्मार्टफोन, है ना। यदि हमारे स्मार्टफोन में या हमारे डिवाइस में एंड्रॉयड इंस्टॉल है तो आप इसके थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस को फैसिलिटेट कर सकते हैं। यदि आप बांग्ला जानते हैं तो आप बांग्ला चूज करके आपके मोबाइल को बांग्ला में ऑपरेट कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश जानते हैं तो आप इंग्लिश की सेटिंग करके अपने मोबाइल या डेस्कटॉप पे इंग्लिश के थ्रू सारी चीजें कर सकते हैं। आपकी लैंग्वेज वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी जैसे कि आपको यूज करनी है ना। तो ये 7 लाख से ज्यादा एप्स और उससे ज्यादा लैंग्वेजेस को कंटेन करता है, ठीक है। तो यदि आपके डिवाइस में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको किसी भी लैंग्वेज में काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इट इज डिजाइन्ड प्रिलिमिनरी फॉर द टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। बेसिकली एंड्रॉयड का यूज टच स्क्रीन डिवाइसेस और टच स्क्रीन मोबाइल को हैंडल करने के लिए ही किया गया था। इसका बेसिक ऑपरेशन था टच स्क्रीन मोबाइल को हैंडल करना। Google has further developed the Android TV for televisions, Android Auto cars, and wears the operating system for wristwatch
each with a specialization user interface. It means ये क्या बोल रहा है कि गूगल ने बेसिकली इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था टच स्क्रीन मोबाइल्स के लिए या डेस्कटॉप और अदर सिस्टम या अदर डिवाइसेस के लिए, बट इन द फ्यूचर जैसे ही इसमें और फीचर्स ऐड होंगे, जैसे ही इसमें और वर्जन्स ऐड होंगे, इसका यूज किसके लिए होगा? इसका यूज होगा टेलीविजन्स के लिए जो कि टच स्क्रीन होंगे, इसका यूज होगा वॉचेस के लिए जो कि टच स्क्रीन होंगी, इसका यूज होगा ऑटो कार्स के लिए जो कि बेसिकली टच स्क्रीन आ सकते हैं फ्यूचर में। आपकी कार भी आप टच स्क्रीन यूज करोगे, ऐसा फ्यूचर आएगा थ्रू द एंड्रॉइड। सो बेसिकली इसका डेवलपमेंट हुआ था एक टच स्क्रीन डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, बट इन फ्यूचर इसका उपयोग हम रिस्ट वॉचेस में भी कर सकते हैं, टीवी कार्स में भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग आगे होने वाला है। इन फ्यूचर जैसे जैसे ये डेवलप होगा, इसके फीचर्स डेवलप होंगे, इसका यूज हम आगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज में कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग। सो वी कैन सी हियर इन दिस लेक्चर हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एंड्रॉइड एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि ओपन सोर्स होता है। सबसे बड़ी इसकी फैसिलिटी ये ओपन सोर्स होता है, इसे कहीं से भी किसी भी जगह से ऑपरेट किया जा सकता है, इसे इंस्टॉल किया जा सकता है, इसका कोई कॉपीराइट नहीं होता है। इसे बेसिकली लाइनक्स कर्नल के थ्रू ये वर्क करता है। 7 लाख से ज़्यादा ये एप्स को सपोर्ट करता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इसके बाद इसे बेसिकली टच स्क्रीन के लिए डिवाइस के लिए ही डेवलप किया गया था, बट ये आगे भी और चीज़ों के लिए यूज होने वाला है। सो इन दिस लेक्चर बेसिकली डिपेंड्स ऑन बेसिक इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपको इस लेक्चर में ये जानने को मिला कि आप एंड्रॉइड का यूज क्यों करें और एंड्रॉइड है क्या। थैंक यू सो मच। So thank you so much for the learning of the Android programming. Stay tuned and keep learning with the SIRT Bhopal. Thank you and good day.